Assalamu alaikum. Ji. My name is Dr. Faitla Yasin. I'm Assistant Professor at Department of Clinical Psychology, at present working as acting head of the department. And I'm a MS and MPhil coordinator as well. Today, the topic of presentation is emotional intelligence, and I welcome you all on this lecture. So, to begin with, what is emotional intelligence or what is emotional quotient? I would start that it's not your IQ. You all know, I believe that you all know, in spite of the diversity in your fields, आप जिस भी subject से है, जो भी आपका background है, you must know or heard of the about the word IQ, which is intelligence quotient. और ये बहुत एक ज़माना था जिसमें इसकी बात होती थी कि जितना आपका अच्छा IQ होगा, वो ज़मानत है कि आप ज़िंदगी में उतने ही कामयाब हो जाएंगे और आपकी सक्सेस का ये बहुत बड़ा प्रेडिक्टर समझा जाता था। और जितने दुनिया में मशहूर शख्सियात हैं, उनके IQ को हम पढ़ते थे और देखते थे कि बड़े हाई है। फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन का और बेतहाशा और बेशुमार लोगों का। तो उसके बाद 1990s में गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया और इसने आते ही साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया ये वर्ड। और अब ये है क्या और इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है और इसको असेस कैसे किया जा सकता है, प्लस ये कि ये किन एस्पेक्ट्स पे को के ऊपर बनता है। इस लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक इट understandable for those whose backgrounds are not from psychology. तो it's not your IQ, it's not even a number. ये कोई IQ की तरह की इसकी assessment नहीं होती और ये हमें कोई quantitative number नहीं देता. But emotional intelligence may be the best predictor of success in life. Redefine what it means to be smart. लेकिन इसके बावजूद ये सक्सेस का एक बहुत बड़ा प्रेडिक्टर है, बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि सक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है सक्सेस में। when I talk about success, तो everything like हम लाइफ में जो करना चाहते हैं, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो वर्क लाइफ होती है, हमारी सोशल जो लाइफ होती है, उन सब में हमारी कामयाबी का ये प्रोडिक्टर वेरिएबल होता है। ये हमें रिसर्च ने प्रूव किया। अब इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? तो emotional intelligence is the ability to recognize and understand emotions. It means that it is not only to the ability to recognize and understand the emotions of others, बल्कि ability to understand and recognize the emotion of oneself. तो ये एक इसकी बहुत बड़ी एस्पेक्ट है कि हम अपनी ज़ात से, अपने जज्बात से, अपनी फीलिंग से तो पहचानते हो और समझते हो, plus using this awareness to manage yourself and relationship with others. As you all know that human beings are social animals and they have to interact with the human most of the time. Like 99% of the time we have to interact with other people in our work, in our family, in our neighborhood, in our, you know, anywhere where we socialize or where we teach or where we, you know, live. हमें लोगों से interaction करना पड़ता है। Or when we are so much interdependent upon other human beings, we must have this ability to be successful as, you know, as person. So this ability is the ability to recognize and understand emotions so that we can manage our own self and our relationship with others. I hope this is clear. I know this is a one-way traffic, आप लोग mute होते हैं, but as you people are more in number and if we unmute you guys, तो ये हमारे टीम का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा न्यूजेंस हो जाएगा और चीज़ें समझ में आना मुश्किल हो जाएगी. But anyhow, I have prepared very simple slides and given the links on different slides. आप अगर उन links को अपने पास खोले side by side,
by side या after the lecture जो आपको 30 minutes मिलेंगे, तो you would get to know the idea, the concept of emotional intelligence very clearly. So I would recommend you to visit these links afterwards. ये आपके लिए बहुत ही आपको अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगी. Johnny Matiron is a tennis player, is a world famous tennis player. और इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये बिल्कुल इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि इसने एक मैच के दौरान में बड़ा क्लियर इन दिया था और उसको एम्पायर ने कहा था कि ये आउट है, और इसने वहां पे रिएक्ट किया था, ये ऊंचा ऊंचा बोला था, रिएक्ट किया था. और ये वीडियो आप देखें तो आप बल्कि सवाल का जवाब ढूंढे कि वॉज ही इमोशनली इंटेलिजेंट और ही वॉज नॉट. As Aristotle says, anybody can become angry, that is easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. जब हम कहते हैं कि emotional intelligence is the ability to understand and recognize one's emotions, तो बड़ी आसान सी बात लगती है. हमें लगता है there is nothing to worry about, and we know ourselves and we know our emotions, and what is the big deal. इसमें ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं पता और हमें मुश्किल होगी. But as Aristotle says, and there is a lot of literature, कि ये बड़ी मुश्किल बात है. This is not an easy job. This is not an easy ability to learn. अगर आपको मैं बताऊं कि साइकोलॉजी में हम लोग थेरेपीज इंटरवेंशन प्लान देते हैं इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर, कि हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है. तो वो बिल्कुल ऐसे ही बात होती है कि अब आप देखिए, एंगर इज अ नेचुरल इमोशन, एंड व्हेनेवर समथिंग हैपन दैट इज यू नो अनफेवरेबल, तो हम एंग्री होते हैं. बट एंग्री होना तो बहुत इजी है, लेकिन सही आदमी के साथ सही डिग्री का और सही पर्पस पे और सही तरीके से होना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. या तो हम बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, या इतना अपने आप को हम सोशली एक्सेप्टेबल बना देते हैं कि हम उसका इजहार ही नहीं कर पाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो नॉट comes into emotional intelligence. Our brains, अब इसको समझने से पहले बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ी सी बात कर ले ब्रेन की और उसके स्ट्रक्चर की और उसकी डेवलपमेंट की. एज यू ऑल नो कि हमारे जो इमोशंस है वो हमारे ब्रेन में हम उनकी परसेप्शन करते हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, और उस लिम्बिक सिस्टम में हमारे इमोशंस की लिम्बिक सिस्टम के पे हम फील करते हैं, और उससे ऊपर जो है वो हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस में हम परसेप्शन होती है. तो आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू मेक अस इमोशनल क्रिएचर. अब हमारे ब्रेन बने ही इस तरह हुए हैं कि हम एक इमोशनल क्रिएचर है. वी एक्सपीरियंस द इमोशनल रिस्पॉन्स टू एन इवेंट बिफोर इट रीचेस द पार्ट ऑफ द ब्रेन. लेकिन बात ये है, अगर आप आगे वाली स्लाइड देखिए, कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे से के फौरन बाद लिम्बिक सिस्टम होता है जहाँ पे हम फील करते हैं, और उसके बाद हमारा रैशनल ब्रेन होता है जहाँ पे हम रैशनली उसको इवेल्युएट करते हैं. और ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि EQ affected by our ability to form and keep traveled connections here, कि जिस तरह हम फील करते हैं और वो इंफॉर्मेशन ऊपर जाती है और फिर वहां से नीचे आती है, तो वो जो पाथवेज बनते हैं, जो ट्रेवल कनेक्शंस बनते हैं, वो वैसा हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी एक्टिविटी इवेंट पे इमोशनली. तो अगर आप इसको दोबारा से, आई एम कमिंग बैक टू द स्लाइड टू मेक यू गाइस क्लियर, कि we experience the emotional response to an event before it reaches to the part of the brain that thinks rationally and reacts to the emotion. अब होता क्या है कि for example, if I'm driving the car and somebody would about to hit me, so what I would say or what I observe in Pakistani men, कि वो क्या करते हैं कि फौरन से उसको अब्यूजिव हो जाते हैं और उसको कहे कि इसको नजर नहीं आ रहा था, ये तो लगने लगा था मुझे, और
इस तरह से इमोशनल रिएक्शन फौरन से देते हैं, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम गई जहां वो फील करते हैं, और वहीं से उनको लंबे अरसे से उन्होंने अपने ब्रेन को वायर्ड ऐसे किया हुआ है कि वो जो इवेंट होगा उसको रैशनली माइंड तक कभी लेकर ही नहीं जाएगी और पहले ही रिएक्शन दे देगी। और लंबा अरसा ऐसे बिहेव करने की वजह से उनके जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं वो वो बन ऐसे चुके होते हैं कि वो उनका लिम्बिक सिस्टम ही जवाब दे देता है, वो फीलिंग से ही इमोशनल रिएक्शन दे देते हैं, और एक मिनट के लिए सोचते नहीं है ताकि उनका माइंड का वो पोर्शन जिसने रैशनली बिहेव करना है वहां तक अभी इंफॉर्मेशन जाती ही नहीं है। So the more we think about what we are feeling and do something productive with that feeling, the more developed this pathway becomes. The more traffic in both directions, the better. लेकिन अगर हम इमोशनली अपने आप को इंटेलिजेंट करना चाहते हैं तो हमें बड़े ध्यान से अपने आप को सोचना होगा, बैठना होगा, और ऐसी चीजों को जर्नलिंग करनी होगी, लिखना होगा कि हम किन इवेंट्स पे, किन सिचुएशन पे हम लोग इमोशनल होते हैं, और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने इमोशंस पे। क्योंकि अगर हमें अपने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक तो हम उनके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, और उनसे इंटरेक्शन में हमारी रिलेशनशिप्स हेल्थी नहीं रहेगी। सो दिस मीन्स इफ आई टिपिकली येल व्हेन आई एम फीलिंग एंग्री, जो कि मेरा आम रिस्पॉन्स है, आई हैव टू लर्न टू चूज एन ऑल्टरनेटिव रिएक्शन। और मुझे फिर ढूंढना होगा कि when something happened unfavorable, I don't have to yell. Rather, I will stay quiet, go home, and think that next time when this happen, what I have to do. And I have to practice it again and again so that neural pathways would establish and I would learn and my brain would develop those pathways in which I am able to behave emotionally, with emotional maturity, right? With rationality. So I must practice this new reaction many times before it will replace my urge to yell. मुझे इतना उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जब भी वो अनफेवरेबल कंडीशन हो तो मैं येल करने की बजाय ये सोचूं कि मुझे क्वाइट रहना है, और फिर उसको बाद में इस तरह से रिएक्शन देना है. This will be the new strategy. So I hope it is clear. The next slide is about the two main aspects of emotional intelligence, which we also called the skills of emotional intelligence. So, what are those skills? It's primarily it's two type of skills: personal competence and social competence. Personal competence is comprised of self-awareness and self-management, and social competence is comprised of social awareness and relationship management. So I would explain all the two components with two further subheadings in detail one by one. Before that, you are looking into this slide, EQ versus job title. So most of the time, जब हमारी सिलेक्शन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी काम के लिए, तो हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को प्रोडक्टर रखा जाता है। हमारे अगर कोई टेस्ट है या कोई डिग्री है जिसमें हमारे कोई नंबर्स आए हैं, उसको समझा जाता है कि वो हमारा प्रोडक्टर होगा टू गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू आवर लेवल। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि अगर हम मैनेजर बनते हैं तो उसके लिए मैनेजर की जॉब है या पोजीशन ओपन हुई है, तो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को, हमारी एकेडमिक डिग्रीज को, हमारी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को देखा जाता है। जबकि रिसर्च ये बताती है कि हमारे जितने भी मैनेजेरियल रोल्स है उसमें ईक्यू बहुत मैटर करता है। जितना बड़ा रोल होगा उतना ज्यादा अगर ईक्यू होगा उतना इमोशनल क्वोशेंट होगा। अगर एक इंसान इमोशनली स्टेबल है, रेगुलराइज है उसके इमोशंस, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो वो ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है मैनेजेरियल लेवल पोजीशंस के लिए। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो मैनेजर का ईक्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए, और फिर सुपरवाइजर का, फिर डायरेक्टर का, बिकॉज एंड देन एग्जीक्यूटिव, बिकॉज दे आर द इंडिविजुअल्स
who have to empathize with the emotions of the juniors and who have to take decisions in the context of their juniors. So their emotional intelligence must be high, their emotions must be regular, so that they are able to work effectively and efficiently, rather than those employees who have to work on machines or who have to work in isolation. They don't have to deal with other people. They are dependent upon their equipment or their computers or their softwares. तो अगर ऐसे लोगों का इमोशनल क्वोशंट कम भी हो या उनकी इमोशनल अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ अबाउट अदर्स इतनी अच्छी नहीं भी है, वो फिर भी चल जाएंगे. बट these kind of jobs, especially we professors, we need high emotional quotient, बिकॉज हमारा तो काम ही बच्चों से, स्टूडेंट से डील करना है. वी हैव लाइक 100 of people in our class and we deal almost daily with number of people. If our emotions are not in our control, how we how we can think that we are able to control the emotion of the students, how we are able to teach them effectively and efficiently. As you all know that teaching means not only to teach a book, teaching means to teach the life. And to teach a life, you must be aware of their, emotional life, their personal life, their well-being, and their feelings, right? So the first component of emotional intelligence is self-awareness. And I put a lot of quotations in the presentation so that it become interesting and easy to grasp the concept. Self-awareness is actually uh, uh, the greatest of faults is to be conscious of none. अब ये इतनी प्यारी बात है कि जो सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती होती है is to be conscious of none, कि हमें अपनी किसी भी चीज के बारे में, अपने कॉन्शियस के बारे में पत, हमें हम कॉन्शियस ही नहीं है किसी चीज के बारे में. तो आपने एक और बड़ी अच्छी फेमस सेइंग सुनी होगी कि द लॉन्गेस्ट जर्नी आई हैव एवर सीन इज द जर्नी टू द सेल्फ डिस्कवरी. कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रास्ता वो रास्ता था जिसमें अपने आप को मैंने ढूंढा या जाना. तो सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट इजी. ये तो बड़ा जिसे कहते हैं बड़ा तसव्वुफाना कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में तो हमारे रिलीजन ने हमारे जो जितने भी सूफी पोइट्स गुजरे हैं उन्होंने भी बात की है, अल्लामा इकबाल ने खुद ही की बात की है. तो खैर, ability to accurately perceive your own emotions, accurately is an important thing. You cannot overestimate or underestimate your emotions. You must have to learn this ability to accurately perceive your emotions, stay aware of your emotions as they happen, key on top of how you tend to respond to specific situation and people. और आप अपने emotions को समझना भी और उस तरह respond जो आप करते हैं उसकी वजह से specific situation और people पे उनकी भी आपको awareness होनी चाहिए. For example, each and every one of you should know that what makes you angry, what makes you happy. These are the basic things. What makes you feel sad? What makes you feel low? What makes you feel motivated? And if you know these things, then your real struggle will start. You start you start looking into the associations of different things which make you unhappy or which make you sad, and then you shift those association, you search alternative, और फिर आप उनको बदल के ज्यादा उस नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपको अपने बारे में अवेयरनेस होगी. सो हाउ वी कैन इम्प्रूव सेल्फ आर अवेयरनेस, दिस इज द लिंक, आप इसको देख सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड लिंक. इसमें बड़ा अच्छा एक इंसान, एक क्लाइंट अपने बारे में अपने थेरेपिस्ट को बताता है, और वो इतने अच्छे से खुद को बताता है कि थेरेपिस्ट उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता है. तो सी नो दाई सेल्फ मीन्स नो योर सेल्फ. सी योर सेल्फ फॉर हु यू आर. What do you think and feel? Watch your emotions like a hawk, even physiological signs. आप हर वक्त अपने आप को evaluate करें, अपनी फिजियोलॉजी को evaluate करें कि किस टाइम पे आपकी palpitation हो जाती है, आपका कब पसीना छूटने लग जाता है, आप कब एंजाइटी फील करते हैं, आपका कब शुगर लो हो जाती है, कब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. These all are your signs and signs of your body. You must be aware of those signs. अब होता क्या है,
As nation, we are not being encouraged since childhood to know about ourselves. हम पसंद ही नहीं करते ऐसे लोगों को जो अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं. हमारा फोकस हमेशा अदर्स होते हैं और बात खराब हो जाती है. जब हम खुद को पहले अंडरस्टैंड करें और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हम दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी. ट्रैक एंड बैक ट्रैक योर इमोशंस इन अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन और मीटिंग. कभी किसी मुश्किल कॉन्वर्सेशन या मीटिंग में आप हो और आप उसमें इमोशनली अनस्टेबल अपने आप को फील करें या आप इमोशनली इमेच्योर फील करें तो घर आके बैठे टाइम दे खुद को, ट्रैक करे अपनी उस सारी की सारी सिचुएशन को कि क्या हुआ था और फिर बैक ट्रैक करे कि क्या ना होता तो आप इस तरह बिहेव ना करते, क्या ना होता तो आपको इतनी एंजाइटी ना होती, क्या ना होता तो आप शाउट ना करते या आप येल ना करते. इसके अलावा यूज पेयर्ड शेयरिंग. दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. आप वो वाला इवेंट जो आपके साथ गलत हुआ उसकी अपनी एज के लोगों के साथ बात करें, अपने सीनियर के साथ बात करें. वो आपको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन मिलेगा. मे बी दे आर एबल टू suggest you something very effectively. Own your actions. Take full responsibility for what you say and do. आप अपने actions को own करें. Because if we accept our mistakes, if we accept our immaturity, if we accept our irregularity in emotions, only then we are able to fix them up. देखिए जी, फिंगर दूसरे की तरफ पॉइंट करना इज इजी, एक्सट्रीमली इजी, बट टू पॉइंट फिंगर टुवर्ड्स वन सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि फिर आप अगर जब अपने खुद के ऊपर करेंगे तो आपको अपने आप को ठीक करने का भी आपका अंदर से आवाज आएगी और वो आपको बहुत मुश्किल लगेगी. बट अपने आप को ठीक करना कंपेयर टू अदर्स इज इजी टास्क, बिलीव यू मी. आप खुद सोचिए और जरा मुझे बताए, बाद में बताइएगा कि लाइफ में सबसे ज्यादा आसान क्या है, किसी को अपने मुताबिक करना या खुद हो जाना, किसी को अपनी इंफॉर्मेशन समझा देना या उसकी बात को समझ लेना. तो हम हमेशा ज्यादा, अगर खुद को, हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी है, अगर हम अपनी जात की जिम्मेदारी ले लेंगे तो हमें दूसरों के साथ भी चलने में आसानी हो जाएगी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ मैनेजमेंट. क्या होती है सेल्फ मैनेजमेंट? कभी हमने सोचा एज प्रोफेसर कि हम अपनी मैनेजमेंट खुद भी कर सकते हैं और हमें मैनेजमेंट की जरूरत भी है. हम तो हमेशा, we always look towards our students that what kind of students they are. Time has changed. Now they are misbehaving. They are not obedient and they behave improperly. They are not able to manage themselves. But we never think that maybe in some aspect we are not managing ourselves properly. So the first and best victory is to conquer self. अपनी सेल्फ की बात करें, पहले अपने आप को फिर किसी और को. तो सेल्फ मैनेजमेंट इज द होल इंडिपेंडेंट एरिया इन साइकोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी ट्रेनिंग होती है. इट इंक्लूड्स योर रूटीन, इट इंक्लूड्स योर हाइजीन, इट इंक्लूड्स योर time management, it includes your anger management, it includes your you know work management and a lot of other things. Relationship management भी इसमें आते हैं. बट सेल्फ मैनेजमेंट में ये जो इतनी सारी चीजें हैं, हमें इनको मैनेज तभी कर सकेंगे when we are totally aware of ourselves. Ability to use awareness of your emotions to stay flexible and positively direct your behavior is self-management. Managing your emotional reactions to all situations and people is self-management. भाई जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा तो आप भी उसके साथ बुरा चलोगे. दिस इज नॉट मैनेजमेंट. ये तो मैनेजमेंट ना हुई ना. मैनेजमेंट तो ये हुई कि आपने खुद को मैनेज किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, एंड नाउ यू आर एबल टू वर्क with anyone because this is your part of job and you have to perform your job peacefully, and you can only perform your job peacefully when you have self-awareness and self-management. So what are the triggers make you want to blow an emotional gesture? अब
जब हमने खुद को मैनेज करने की बात की तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने अपने बैठ के इस लेक्चर के बाद I would be very happy if like majority of the people would able to list their emotional triggers. अगर वो बैठे और अपना ये लिख ले कि उनके कौन से इमोशनल ट्रिगर्स है जो जब होते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, वो उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उनका बीपी हाई हो जाता है, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर उनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, उनका स्टमक इशू हो जाता है, उनको उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ फाइट और फ्लाइट कॉन्स्टेंटली। तो वो इमोशनल ट्रिगर्स क्या क्या है? Everybody has a different set of uh, different emotional triggers. I have made a slide of few. आप लोग अपने अपने बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सरकाज़म यूज करे, आपको कोई तंज करे तो मे बी आपको गुस्सा आए, या इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर हो, या कोई दरवाजा जोर से बंद कर जाए आपका जूनियर और आपको गुस्सा आ जाए, ईमेल आ जाए तो आपको ऐसी कि आप पढ़ते साथ ही परेशान हो जाए, विड्रॉल एंड आइसोलेशन, आप खुद अकेले हो रहे हैं, आपके साथ पेयर नहीं है, आपके यू आर ऑल अलोन इन योर वॉर, तब होल्डिंग ग्रजेस इन गेटिंग इवन, आप आपको जो ग्रज आप दिल में रख रहे हैं वो आपका रेड फ्लैग है, उसकी वजह से आप ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आपके एंग्री डायरेट्स है, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है, और ये वो तमाम सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ लोगों को किसी इंसान को देखते ही गुस्सा आ जाता है, ठीक है भाई आ जाता होगा, बट he should know so that he can practice that whenever, and he should mentally practice that whenever he or she would encounter that person, he would not behave emotionally, rather he would behave maturely. He would have to give suggestions to his mind कि मैं इसके साथ ऐसे behave नहीं करूंगी, लेकिन उसको रेड फ्लैग पता होना चाहिए। उसको रेड फ्लैग पता होना चाहिए कि जब भी मैं सुबह घर से निकलता हूँ और अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरे आगे जाके काम खराब होते हैं और मैं प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप सब लोगों को अपनी रेड फ्लैग्स पता होने चाहिए। हमारा जो दूसरा कॉम्पिटेंट कंपोनेंट था वो था सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस में जो पहली चीज थी वो थी सोशल अवेयरनेस। सो रिजॉल्व टू बी टेंडर विद द यंग, ये हमने बहुत, आपको पता है, इट इज द टीचिंग ऑफ आवर इस्लाम, it is the teaching of our culture. Gautama Buddha ने भी ये कहा कि resolve to be tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving, and tolerant with the weak and wrong. Sometimes in your life you will have been all these, कि आपने sometimes life में ये तीनों चीजें होनी है, कि आप किसी young के साथ compassionate है, aged के साथ sympathetic है, और किसी स्ट्रगलर के साथ टॉलरेंट है, या कोई गलत है तो उसके साथ, और समटाइम्स आपको किसी एक इंसान के साथ कंपैशनेट, सिंपैथेटिक और टॉलरेंट भी होना पड़ता है। तो ये है सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल अवेयरनेस, एबिलिटी टू एक्यूरेटली पिक अप ऑन इमोशंस इन अदर पीपल। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है पूरी साइकोलॉजी में, पूरी काउंसलिंग साइकोलॉजी में कार्ल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट था कि हम जब तक हम दूसरे का जूता ना पहने, हमें उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं हो सकता कि जूता कहाँ से लग रहा है, और यही एम्पैथी होती है। तो हमारी एबिलिटी किसी दूसरे के इमोशंस को एक्यूरेटली पिक करना और अंडरस्टैंड करना, और व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड एंड इन देयर लाइफ, इसको एम्पैथाइज करना और परसीव करना, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल्स आर थिंकिंग एंड फीलिंग इवन इफ यू डोंट फील द सेम वे। चाहे आप वैसा नहीं सोचते, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना कि ये किस चीज से गुजर रहा होगा। स्पेशली वी प्रोफेसर्स, we must have this ability, we must be aware of our students emotional health, we must be able to converse with them how they are feeling, what they want to do in their life, what are their emotional triggers, and how they are able to manage their emotional setbacks, वो कैसे कर सकते हैं। So you must all have emotionally intelligent and emotionally stable, so that you would be able to understand the emotions of your students, and you get the awareness of their emotions, right? So
द एम्पैथी जिसकी अभी मैंने बात की, इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ कि एम्पैथी इज द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अनदर point of view and to identify and understand other situation, feelings and motives. I know exactly how you is empathy. You know, putting yourself into others' shoes so that you know where it is hurting. This is, you know, one of the biggest pillar of psychology. हम जब भी कोई clinical training होती है, I'm a practicing clinical psychologist and a placement supervisor. I always tell my students that you cannot be a counselor or a therapist if you don't n- n- if you don't have this ability of being empathetic. At least you have this, you know, this quality of empathetic listening, that whenever somebody is telling you, somebody is opening up, somebody is sharing the history, you can say, I know what, from what kind of issue you are being through, or I exactly know how you are feeling. I can relate with your pain. इतना भी कहना उनके लिए बहुत काफी होता है, and you become in a position to understand them. अच्छा, हम अपनी सोशल अवेयरनेस को, क्वेश्चन ये है कि बढ़ा कैसे सकते हैं, how we can increase our social awareness, because most of the time nowadays we are on our mobiles, and the focus of our brain, 90% of our brain is on the cell phones, right? We are not very much familiar with what is going around us, what kind of social field we are in, what kind of people we are with. हम उनके बारे में नहीं जान रहे, बल्कि हम जो मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, या जो हमारे हाथ के अंदर ये डब्बा है और ये जो हमें लिए जा रहे हैं जहां जहां, वहां ज्यादा जा रहे हैं. तो इस टाइम पे स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑब्जर्विंग, आस्किंग एंड लिसनिंग. आप थोड़ा सा अपने अराउंड, अपने लोगों के साथ टाइम गुजारें, उनको ऑब्जर्व करें, उनसे पूछे, उनसे उनकी सुने. बिलीव यू मी, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम. आप एक ये प्रैक्टिस करके देखिए कि आफ्टर your each lecture, just give a 5 minute observation of your class. Take 5 minute observation, and you can ask, how was the lecture? What you are feeling? How can we improve that? What do you think you want to be? Or how you can participate in the next lecture? इस तरह की तो छोटी मोटी चीज कॉन्वर्जेशन आप उनसे रखेंगे, you will get to know about your students. Maintain eye contact. Give speaker your full attention. अगर कोई आपसे बोल रहा है या आप कहीं बैठे हुए हैं तो उसको full attention दे. Play back and summarize. When you get home, always play back what happened in the college, what happened in the university. Always play back. Imagine all the things you have been through in a day, so that you get to know that in which situations you haven't behaved properly, or you were emotionally unstable, or behaved immaturely, and list all these situations, so that you can alter the reactions which you had given in a day. Try on their shoes. Empathy, थोड़ी सी empathy ला के उनको समझने की कोशिश करें. Suspend your judgment. Believe you me, it's the most important point. Whenever you are observing others, when you are with someone, when you are in an interaction, कोई भी चीज है, सस्पेंड योर जजमेंट. उस टाइम में अपने आप को ये मैसेज दे कि मैंने इस इंसान को इवेलुएट नहीं करना, मैंने अभी इसको जज नहीं करना, मैंने अभी इसको बस ऑब्जर्व करना है, एंड मेक इट योर हैबिट. यू बिलीव यू मी, you would you would be at peace when you start doing this. When you suspend your judgment, you know, this is not the duty of human beings to judge others. This is the role of Allah subhanahu wa ta'ala. हमारा तो रोल ही नहीं है ये. हाँ, in time of critical decisions, we have to judge and we have to evaluate. तब करें आप. जब आपसे कोई पूछे तब आप evaluate करें. जब आपने कोई decision लेना है तो आप evaluate करें. But all the time, if you're judgmental, critical all the time, your relationship will affect. You will not be able to understand others' perspective, and your brain will be active to look into the situations in your context, और आप उसे राइट रॉन्ग में करते हुए कंपार्टमेंटलाइज कर रहे होते हैं. आप उस तरह चीजों को परसीव करें जैसे अगले आपको बता रहे हैं, स्ट्रिक्टली फ्रॉम देयर्स पर्सपेक्टिव.
not from yours perspective. उसका भी टाइम आएगा, अपने perspective पे भी interpret करने का टाइम आएगा, लेकिन when you have to aware of others, आपने ये काम नहीं कर। Read body language, non-verbal जो language होती है, that is very important. Decipher emotions in speech tone. आप बहुत दफा किसी के बोलने के अंदाज से बहुत सारी इमोशंस को आपको समझ आ जाते हैं, और उसकी स्पीच, उसकी टोन बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट कर रही होती है कि हाउ द पर्सन इज इमोशनली फीलिंग। सो यूज अवेयरनेस टू मैनेज रिलेशनशिप। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट था और सबसे इम्पोर्टेंट था इसकी एस्पेक्ट जो हम दो पढ़ रहे थे, पर्सनल कॉम्पिटेंस और सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर, तो वो एक ये भी था कि हमने यूज अवेयरनेस टू मैनेज रिलेशनशिप्स, कि हम अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए उस सोशल पर्सनल अवेयरनेस का और सोशल अवेयरनेस का यूज करते हैं, और किस तरह करते हैं इसमें भी बड़ा अच्छा एक लिंक दिया हुआ है, वो आप लेटर पढ़ सकते हैं, स्लाइड्स शेयर हो चुकी हुई है ग्रुप में। Excuse me. So, relationship management, people aren't either wicked or noble. They are like chef salads with good things and bad things chopped up and mixed together in a vinaigrette of confusion and conflict. देखिए लोगों को ना एक्सट्रीम कॉन्टिनम पे डिवाइड ना करें, ये गुड और बैड, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, सोशल और आइसोलेशन, ये एक्सट्रीम्स है। और ह्यूमन बिहेवियर्स जो है वो कॉन्टिनम पे होते हैं। एज यू ऑल नो, आई बिलीव यू नो दैट नन ऑफ अस are bad all the times, as none of us are good all the times, right? There are situations when we can behave badly, but it does not mean that we are bad. And simultaneously, we can behave so good sometimes, but not all the times. So people are like this. People behavior are on the continuum, and it always fluctuated between the two continuums. So ability to use awareness of your emotions and emotions of others to manage interaction successfully. अब किस तरह वो सक्सेसफुल हो सकता है? When you will be non-judgmental, when you know yourself, and then you would empathize others, तब आपकी relationship management अच्छी हो सकती है। Ensure clear communication and effective handling of conflict. आपने जी एक बात जो लर्न करनी है वो है effective communication. Whatever you try to communicate, communicate it clearly. That communication should not be unclear. Effective communication हमेशा clear होती है. Effective communication हमेशा direct होती है. In that communication कभी भी effective नहीं हो सकती है. If, for example, if you have a problem with your boss, you must directly talk about that issue with your boss, rather than कि आप 10 लोगों से और बात करो लेकिन अपने बॉस से ही बात ना कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। आपको नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। सीक टू बिल्ड हाई क्वालिटी हाई ट्रस्ट रिलेशनशिप्स। हमेशा कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी, your emotional regularities, to build high quality and high trust relationships. Try to discover what role emotions are playing in your interaction with others. Always learn, always try to learn that how you behave emotionally and how does it affect on others people life. देखे तो सही कि अगर आप किसी को प्यार से बात करते हैं, आप किसी के बात करते हुए उसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं किसी स्टूडेंट के, तो कैसा रवैया होता है, उसके अंदर क्या चेंज आता है। अगर आप किसी लो लेवल लो कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट को क्लास में बात करते हैं और उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो देखिए उसकी आंखों में कोई चमक आती है या नहीं आती है, वो पहले से इम्प्रूव होता है या नहीं होता। तो आप डिस्कवर करें कि किस तरह आपकी इमोशनल लैंग्वेज दूसरों आपकी इंटरेक्शन पे रोल प्ले कर रही होती है। इफ यू सेंस टेंशन और अदर इमोशनल रिएक्शंस इन अ पर्सनस बॉडी लैंग्वेज और स्पीच, आस्क क्वेश्चंस टू सीक टू अंडरस्टैंड। आप अपने स्टूडेंट से बात करते हुए आपको लगता है कि वो किसी तरह की टेंशन में है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उनसे बात करें, उनसे सवाल पूछे कि व्हाई यू आर behaving in a certain fashion, or why you are behaving in a certain manner. Would you explain, or do you need my help? Are you okay?
You know, in our culture, the are you okay is not an often heard statement. आप कभी बाहर किसी का जाना हुआ होगा, आई बिलीव जरूर हुआ होगा. आप ये देखिए दुनिया के हर कल्चर में आर यू ओके is a statement which you often heard. Do you need any help? I'm here for your help. आपको ऐसी बातें नहीं मिलेगी. You can do it. Good luck. Good job. ये छोटे छोटे वर्ड्स है. It costs nothing. Believe you me, smile is the smallest charity you can give. पीछे क्या रह गया? So these are little things which create big changes. Be quick to settle disputes, difference of opinion, and misunderstanding. There are always difference of opinion between two intellectually capable people. ऐसा नहीं होता कि ना हो. But whenever it happened, try to fix it at your earliest. उसको linger on ना करें. मुझे इसकी बात से इख्तलाफ है, लेकिन उस इंसान से इख्तलाफ नहीं है. ये आपका कन्विक्शन होना चाहिए और यही आपकी टोन होनी चाहिए. Self assessment. अच्छा, अब this part of the presentation is specifically designed for teachers, for professors like you, so that I have this goal of for this presentation कि अगर आप में से कोई दो चार लोग भी कोई एक दो चीजें इसमें से सीख के अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आई बिलीव दे वुड feel the difference in their teaching. So I have developed few interventions. काफी चीजों की तो बात इस presentation में already हो रही है. कुछ ऐसे points है जो रह गए हैं, उसकी अभी इस पे हम बात कर लेंगे. तो पहला पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन. सेल्फ असेसमेंट की मैंने बात की थी कि हम लोग एज प्रोफेसर्स अपनी असेसमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस की कैसे कर सकते हैं. हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि आइदर वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट और नॉट. पहली बात तो इसमें ये है कि इसके लिए हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की या काउंसलर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे यह हकीकत है कि साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी लर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर and mental processes, and we are expert, we psychologists are considered to be the master of understanding human behavior. But as you all know that humans have to deal with other humans, और वो चाहे फॉर्मल उन्होंने साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ी, उन्होंने नहीं भी इनकी किताबें पढ़ी देखी डिग्रीज ली, फिर भी हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहने की वजह से बहुत सारी साइकोलॉजी का पता होता है और वो उसको जाने अनजाने इस्तेमाल कर रहा होता है. आप देखिए हमारा जितना भी फोक विजडम है वो क्या है, हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है? टॉलरेंस, पेशेंस, एम्पैथी. ये सब क्या बातें हैं? ये सब वो बातें हैं टू जो एक सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बनाती है. सो जो हमारी इंटरवेंशन है उसमें हम खुद को असेस करने के लिए वी कैन यूज सम गुड इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चनियर्स. और वो बड़ी सिंपल सादे अवेलेबल क्वेश्चनियर्स होते हैं. ये तो हमें अपने बारे में खुद भी पता होता है. हमें पता होता है कि हम इमोशनली रेगुलर है या नहीं, हमें या इरेगुलर है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल है भी या नहीं. अगर नहीं तो भी पता होता है, और अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहे तो हमें उन तरीकों का भी पता चल सकता है जिससे हम कर सकते हैं. तो हम कोई भी एक तो सवालनामा फिल करके अपने आप को देख सकते हैं कि हम किन एस्पेक्ट पे इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है. दूसरी बात, हम अपनी ऑब्जर्वेशन करके अपने क्लोज लोग जिनके साथ काम करते हैं उनसे पूछ के भी कर सकते हैं. Reflective journaling. Professors engage in regular journaling to explore their emotions, experiences, and reactions in the classroom. Reflective journaling is a technique जिसमें हम डायरी टाइप लिखने का या अपने नोट्स लेने का कहते हैं कि आप रेगुलरली घर आए बैठे और क्लास में जो आपने जिस तरह बिहेव किया, क्या कोई ऐसी सिचुएशन उभरी जिसमें आपने थोड़ा गुस्सा दिखा दिया, या जिसको आप इमोशनली आप समझते हैं कि मेच्योरली हैंडल नहीं कर सके, या आपकी अपने प्रिंसिपल से कॉन्वर्जेशन हुई जिसमें आप थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर गए, वो आप लिख ले और आके उनको बड़े अच्छे तरीके से नोट डाउन कर ले उन चीज़ों को. दिस विल गिव यू
एग्जाम्पल्स, जिसे कहते हैं ना ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन मिल जाएगी जो आपने चेंज करनी होगी। इमोशनल अवेयरनेस एंड रेगुलेशन, आप ऐसी इंटरेक्टिव सेशन रख सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस हो जाए। आप अपने इमोशनल ट्रिगर आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, बताओ बेटा आपने क्या नोट किया, मुझे कब कब गुस्सा आता है। और बिलीव यू मी, आपको ऐसे सच सुनने में मिलेगी कि आपने कभी सुने ही नहीं होगी। या उनको बताओ आपको क्या लगता है मैं कब ज्यादा खुश होता हूँ, यू नो। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप अपने कॉलीग से पूछ सकते हैं, भाई मेरे तुम बड़े अच्छे दोस्त हो, मुझे ये तो बताओ कि मुझे कब और किन बातों पे गुस्सा आता है और मैं उनको कैसे ठीक कर सकता हूँ, यू नो। सो दिस इज इमोशनल अवेयरनेस इंटरेक्टिव सेशंस। इसके बाद एक चीज होती है माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। माइंडफुलनेस इज द बेस्ट थेरेपी, स्पेशली इन टुडेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एरा, कि हमें तो इतनी सख्त जरूरत है माइंडफुलनेस की कि हमें खाना हम खा भी माइंडलेसली रहे हैं। हम लोग ऑल द टाइम वी आर ऑन आवर सेल्स, व्हेन वी आर ईटिंग वी आर नॉट ईटिंग, एक्चुअली वी आर ऑन आवर सेल्स एंड continuously seeing different things on our mobile। और जब हम क्लास में होते हैं तब भी बीच कभी हमारी फोन की बेल बजती है, कभी हमारे डिपार्टमेंट से कोई कॉल आ जाती है, कभी हमें कोई जरूरी मैसेज आ जाता है। 1700 ग्रुप्स का हम पार्ट होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में व्हेन वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजी एरा, वी शुड बी वेरी वेरी माइंडफुल कि हमें, फॉर एग्जांपल, आप खुद के साथ माइंडफुलनेस ये कर सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल को क्लास में नहीं लेके जाना। दिस इज योर माइंडफुलनेस टेक्निक, टू यूज माइंडफुली योर मोबाइल, राइट। या आप ये कर सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट पे रखना है और स्टूडेंट्स के सामने इस्तेमाल नहीं करना। आप अपने आप को ये माइंडफुलनेस टेक्निक दे सकते हैं कि मुझे 3 घंटे या 4 घंटे में कोई ऐसा मैसेज नॉर्मली नहीं आता जिसका अगर मैं जवाब ना दूं तो लाइफ डेथ का इशू हो। तो आप अपना टाइम सेट कर ले कि मैंने हर 3 घंटे के बाद ही मोबाइल पकड़ना है, उससे पहले नहीं पकड़ना, क्योंकि जब मैं इसको पकड़ता हूँ तो सिर्फ न्यूज फीड चेक करने में और डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स में ही मेरे 30 to 40 मिनट्स टू 1 आवर निकल जाता है। तो ये हमारी जो माइंडफुलनेस है, इसी तरह माइंडफुल ईटिंग होती है, माइंडफुल बिहेविंग होता है। तो हम लोगों को, और हम खुद को ये सिखाते हैं कि किस तरह हमने माइंडफुली वर्क करना है, ऑपरेट करना है, सो दैट हम अपने टाइम को मैनेज कर सके, हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके और हम डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ इफेक्टिवली डील कर सके। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, in techniques में perspective sharing exercises, professors can engage in activities that encourage them to understand and appreciate diverse students' perspective and experiences। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके तो देखें। नॉलेज शेयर्स तो हम होते हैं ना, तो हम पर्सपेक्टिव शेयर्स क्यों नहीं बन सकते। आप अपना पर्सपेक्टिव बताएं किसी चीज को करने का, आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, मैं अपना बताऊंगा, एंड देन वी कैन develop a consensus on the basis of both the perspective, and this is, believe you me, not difficult, not so difficult जितना वो बना हुआ है। रोल प्लेइंग सिनेरियोस, कभी आप अपनी क्लास में जाए तो बच्चों को कह सकते हैं आज आप प्रोफेसर बन जाए, प्रेजेंटेशन दे, मैं स्टूडेंट बनता हूँ। और फिर आपको पता चलेगा कि इतना भी आसान काम नहीं है किसी ऐसी चीज पे जिसपे आपको लगे कि ये अगर मैं रोल प्ले करके इनको बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट इनको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह तो स्टूडेंट आपसे कहते हैं कि आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि मैं जिस टाइम पे गुस्से पे हुआ था उस सिचुएशन को हम प्ले करते हैं। तुम उस्ताद बन जाओ, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, एंड यू वुड गेट टू नो कि आपने कहाँ गलती की थी। जब आप ऑब्जेक्टिवली अपनी गलती को किसी और को करते हुए देखेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दीज ऑल आर वेल रिसर्च टेक्निक्स जिनको जब आप करते हैं एडमिनिस्टर अपनी लाइफ में तो आपके इमोशंस काफी रेगुलर हो जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने पहले बात की थी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। कोई थ्रेट नहीं देना, क्लास में आओगे वरना मैं ये कर दूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम ये करते हो। योर कम्युनिकेशन शुड बी नॉन थ्रेटनिंग, नॉन वायलेंट, focusing on active listening, empathy, using language that promotes understanding। हमारे बड़े दो अच्छे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लोग हैं, एडम बेक और एल्बर्ट एलिस। उन्होंने कहा कि आप अपनी लाइफ से ये नेगेटिव वर्ड्स हटा ही दे। आई ऑलवेज डू दिस,
I must do this, I should do this. ये always, must, should, never should not be in your daily language, क्योंकि ऐसा नहीं होता. आप देखिए आपको स्टूडेंट क्या कहते हैं. मेरे पास बच्चे आते हैं कहते हैं हम वी आर आई एम एन अल्टीमेट फेलियर, आई ऑलवेज फेल. मैं उसको कहती हूँ नहीं ऐसा तो नहीं है. मैट्रिक में पास हुए थे तो कॉलेज में गए थे ना, कॉलेज में पास हुए हो तो बीएस करने आए हो मेरे पास. तो एकदम हैरान हो जाते हैं. मैंने कहा कैसे कह रहे हो यू आर ऑलवेज अ फेलियर. नो वन कैन ऑलवेज बी अ फेलियर, नो वन कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, इनकरेक्ट, ऐसा नहीं होता. तो ये नेगेटिव लैंग्वेज, इफ यू स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स, इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करे, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करे और स्टूडेंट्स की ओपिनियन को अंडरस्टैंड करे. दीज आर द टेक्निक्स जो बहुत हेल्प करती है. क्रिएटिंग द पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, explore techniques to create an inclusive, respectful learning environment, considering diverse backgrounds, learning styles, and cultural sensitivities. देखिए आपकी क्लास में ज़रूरी नहीं है. अब मैं अपने यहाँ पे बच्चों को बताती हूँ, स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का कोटा बहुत बड़ा है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान. आइस हॉकी वाली खेलने वाली बच्चियाँ, कराटे, मार्शल आर्ट्स. तो 9-10 स्टूडेंट्स एक क्लास में गिलगित बल्तिस्तान की होती है. दे आर एपरेंटली डिफरेंट, देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट, देयर कल्चर इज डिफरेंट. तो यहाँ पंजाबी स्टूडेंट्स तो एक्सेप्ट नहीं करते और क्लास में 2 ग्रुप्स बन जाते हैं. एक इन ग्रुप बन जाता है, एक आउट ग्रुप बन जाता है. वो समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है और वो समझते हैं ये हमारे लिए नहीं है. तो आप इस तरह की कल्चरल सेंसिटिविटीज को खत्म करें, सो दैट यू वुड आप लोग ज्यादा बेहतर इमोशनली अवेयर हो दूसरों के प्रॉब्लम से, और वो लोग भी आपस में अच्छे पॉजिटिव इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके दूसरे की. Then building student connection strategies for fostering positive relationship with students, such as one-on-one meetings, mentoring, small group activities. This is very important. Class में जाना, पढ़ा के आ जाना आधे दिल से is not a solution, right? अगर आप पॉजिटिव क्लाइमेट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी भी बढ़ाएंगे और आपका इंटरेक्शन भी अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा होगा. ऑनगोइंग सपोर्ट एंड इवैल्यूएशन, ऑलवेज आस्क फॉर रेगुलर फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्रिटिकल फीडबैक. और जो कोई ऑनेस्ट फीडबैक दे उसको एक्सेप्ट करे और उसको इनकलकेट करे अपनी लाइफ में, उसको अपनी लाइफ में शामिल करें उस चीज को. अगर आपको कोई ये फीडबैक मिलती है कि आप बड़ा तेज पढ़ाते हैं या आप टाइम पे क्लास पे नहीं आते हैं या हमें आपकी समझ नहीं आती है, तो उसको पॉजिटिव ले और उस चीज को हैंडल करें. Final thoughts about the lecture is, if your emotional abilities aren't in hand, if you don't have self-awareness, if you are not able to manage your distress and emotions, if you can't have empathy and have effective relationships, then no matter how smart you are not going to get very far of it. आप जिंदगी में ना बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, बहुत पीसफुल नहीं रह पाएंगे, बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी आपको सुकून नहीं मुयसर होगा, आपकी सब्जेक्ट में अच्छी रेपो नहीं रहेगी. तो ये मेरी फाइनल थॉट्स थी. नाउ यू हैव लाइक good 30-35 minutes to ask questions. अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स है, बुक आर्टिकल्स है जिनकी बेस पे ये स्लाइड्स बनाई गई थी. इनको आप जरूर देखें, आपके पास टाइम है. आप कुछ जो लिंक्स है उनको भी देख सकते हैं. मैं आपको 5-10 मिनट दे भी सकती हूँ. क्लियर? हेलो. अब अगर आप इनको अनम्यूट जी कर मैम. दें. जी, आप अगर आप ओके मैम, इनको मैं करता अनम्यूट. हूँ. जी मैम, कर दिए मैंने माइक लाओ. जिनके हैंड रेस थे मैं उनके माइक लाओ कर दी. अच्छा जी. तो जी जी जी, प्लीज आस्क अस्सलाम क्वेश्चन. वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम. अस्सलाम. मैं वालेकुम. अतिया गिलानी गुलबर्ग कॉलेज से बोल रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ही. थैंक यू सो. ऑल्दो ये टेस्ट में टॉपिक लिस्ट मिली है उसमें नहीं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स टेस्ट में होने चाहिए सो दैट प्रैक्टिस आपकी ज्यादा अच्छी हो जाए. Sorry, if you please repeat that this topic is not in the test. जी, जो लिस्ट हमें प्रोवाइडेड है 52 टॉपिक्स, उसमें तो मुझे ये कहीं नजर नहीं आया. बट But थिंग इज दिस I कि
but I have been asked to develop MCQs on the topic. चलें, दैट्स गुड, आपने बता दिया, हमें से भी फिर इसको उसी तरीके से देख लेंगे। Sure, लेकिन sure. जो हमसे लिस्ट शेयर की गई थी उसमें शायद ये नहीं था। तो मैडम, इट Okay. वाज वेरी गुड। और मुझे दो चीज़ों के ऊपर आपसे एक तो बात पूछनी थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी थोड़ा सा बिहेवियर साइंसेस से ही है। एक तो ये Sure. कि आपने एंगर की बात की, आपने ये सब कहा कि घर जाएं और जाके अपने आप को रिव्यू करें, अपने उस इमोशन को करेक्ट करने की कोशिश करें। जी जी वो तो आप घर जाके करेंगे ना, व्हेन यू आर एंग्री आप डेफिनेटली आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल वो नहीं होता। तो उसमें रिएक्शन, क्या रिएक्शन से बचने के लिए आप अपना डिलेड रिस्पांस थेरेपी या डिलेड रिस्पांस टेक्निक यूज कर सकते हैं? उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा। और जी मिस, वन बाय वन मैं आपका पहले ये बता दूं, फिर आप अपना दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मिस अतिया, बात ये है कि मैंने आपको हम ब्रेन की थोड़ी सी फिजियोलॉजी बताई थी कि हम लोग जो फौरन रिएक्ट करते हैं उसकी वजह ये होती है कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी ट्रेन्ड आवर ब्रेन्स टू बिहेव लाइक दैट ना। अगर हमें किसी बात पे गुस्सा आता है तो हमने एक लंबा अरसे के लिए अपने ब्रेन को वैसे सिखाया होता है कि हमें गुस्सा करना है, और टू अनलर्न इट विल टेक टाइम। हमें अपनी किसी भी चीज को अनलर्न करने के लिए, उसको एक्सटिंक्ट करने के लिए बाकायदा तौर पे टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। हमें डेली उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यस, फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वी कैन आइदर लीव द डिस्कशन और लीव द मीटिंग और स्टे क्वाइट। ये तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं गो टू रिस्पॉन्स होना चाहिए बीइंग एन एडल्ट। लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, ये हमारा फोकस होना चाहिए। और हमें ये पता हो, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू नो क्लाइंट्स कम टू मी एंड से कि मुझे तो मैंने ये देखा है कि उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली उनको किस पॉइंट पे गुस्सा आया है या वो बात क्या है। दे आर वेरी अनअवेयर ऑफ द थिंग, और वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स दे देते हैं बगैर रैशनलाइज किए हुए कि इसका नतीजा क्या होगा या हाउ बैड इट इम्पैक्टेड ऑन देयर लाइव्स। तो जो सीखने की चीज थी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली अ लर्न स्किल। और हमें ये सीखना ये है कि हमारे ये चीजें हैं जिस पे हम इस तरह बिहेव करते हैं, और अब हमने उनको बैठ के उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने और उन ऑल्टरनेटिव को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। जो सेकंड पार्ट था वो थोड़ा सा सोशल एक ट्रेंड के हवाले से था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना लोग आजकल कल्चर है कि व्लॉग वगैरह देखते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। और वो हम्म मैं पूछना चाहती थी कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस करने में जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो सिचुएशन को जाने बगैर एक अपना सब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहे होते हैं, उसके बारे में आप जरा बता दीजिए। वो साइकोलॉजिकली या हमारे बिहेवियर देखिए को किस तरीके के साथ काम कर रहा है? I got your point. The first thing, I never recommend motivational speakers. उसकी बात वही है कि they don't have a proper background and training, and without context, without having a complete grasp over psychological theories, they are just focusing on the implementation, और वो भी बड़े surface level की. You know, if somebody is having a genuine depression and deep depression, and you are saying that कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये बस आप सोचे ही ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी तो इतनी ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही है कि वो उसको रोक ही नहीं पाता, यू नो। जी और आप उसको कह रहे हैं कि आप इसके बारे में सोचे ही ना, उसका तो प्रॉब्लम ही ये है कि वो सोचे बगैर रह ही नहीं सकता। तो दैट्स ट्रू। जी हम जो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, हम उसको भी फिल्टर करना है। ऑल मोटिवेशनल स्पीकर्स आर नॉट हैविंग अ क्लियर ट्रेनिंग, जो कि जिसे कहते हैं ना फॉर्मल ट्रेनिंग उनकी नहीं होती है। और जी कोई भी आप ऐसी वीडियो जो आपकी, देखिए आपके मोरल को अप करने के लिए, आपको आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, इट्स ओके, बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी यू आर यूजफुल, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट जी डॉक्टर अस्तमा। जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी। आई वाज ट्राइंग टू अनम्यूट माय माइक जी। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी यूजफुल लेसन प्रेजेंटेशन जी। ऐसा है मैडम कि देखें, एक चीज़ हम जो यहाँ पर आई थिंक इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी
all of us belong to a certain age group. हम में से बहुत कम होंगे जो direct selection में 40s में होंगे, तो we be pretty much into our 50s, all of us. एक Yeah. चीज जो हम देखते हैं और समझते हैं कि एक लेवल पर जाकर एक सर्टन एज में एक सर्टन लेवल की इमोशनल इन्फॉर्मिटी आ जाती है इंसान में. अब दिस इज द टाइम, जैसे मुझे नहीं पता लेकिन मेरे साथ इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं कि यू वेयरिंग योर ग्लासेस और आप अपनी ऐनक ढूंढ रहे हैं या चाबियां भूल गए हैं. सो दैट इज ऑफ कोर्स जो सीनाइल डिमेंशिया आगे जाके बनता है, लेकिन थोड़े थोड़े आपको मेमोरी के इश्यूज होते हैं और वो उसके साथ साथ इंसान जो है वो इमोशनली इनफर्म होता चला जाता है. और उसके पीछे शायद ये एक वजह होती है कि बहुत सा कुछ जिंदगी में देखा होता है, बहुत कुछ इंड्योर किया होता है और बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया हुआ होता है. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट एक उम्र के बाद जाकर आपको पता चलता है कि बहुत सारे नॉनसेंसिकल जो हमने गोस्ट्स क्रिएट किए हुए थे या खौफ क्रिएट किए हुए थे या हमारे डर थे या माशरे को लेकर लोग वो दे वर लाइक वेरी यूजलेस concepts. So my question is कि देखें सवाल इस तरह से है कि देखें लोग कई दफा जब आपके जो सामने बैठा हुआ इंसान है, जॉब पे बात कर लें या वो कहीं और कर लें, maybe you have become very predictable for them, and sometimes people do it spitefully. They're not like, एक तो मैं आपकी लेक्चर से समझ रही हूँ कि हम उसको समझें, हम एम्पैथी करें, हम इस चीज में जाएं कि वो where is that person coming from, what is the basis of what he's saying. So all those things are very good, and in normal situation you should practice all those rules or dictums or whatever. लेकिन आपको जब एक चीज एस्टेब्लिश हो गई कि खामखा में आपको किसी इदारे में किसी लेवल पर अगर आपकी जानकर तजलील करने की कोशिश की जा रही है, ये जानकर आपको ऑफेंड करने की कोशिश की जा रही है, यू नो where the whole thing is coming from. तो ऐसे में जो है क्या करना चाहिए? पहले मैं अपना यहीं पे स्टॉप करूंगी, इस सवाल का जवाब प्लीज दीजिए. देखिए, पहली बात तो if you know yourself and you know कि ये मुझे जान के इस तरह कर रहे हैं या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का शिकार हो रही हूँ, तो you should have enough in your basket as well. देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि politics is no more a negative connotation. This word has no longer a negative connotations in work settings. मुझे किसी ने कहा, हमारे डीन है वहाँ पे, वो मैनेजमेंट से थे, मैंने कहा यू नो डॉक्टर फायदा, यू मस्ट लर्न ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. मैंने कहा व्हाई सो, आई कैन नॉट कंटामिनेट माई सेल्फ. मैंने कहा नो, दिस विल नॉट बी द कंटामिनेशन, दिस विल बी द इमोशनल इंटेलिजेंस. इफ यू नो दैट हाउ अ पर्सन वुड अटैक यू, तो आप पहले से अपने आप की तैयारी करें कि आपके पास ये जवाब होगा. तो दैट इज हाउ यू हैव टू डील विद द थिंग्स. इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ उसकी पॉजिटिव एम्पैथी नहीं है, उसकी एम्पैथी आप नेगेटिवली एम्पैथाइज भी हो सकते हैं ना. आई मीन अगर आपको पता है कि द पर्सन इज नेगेटिव फॉर यू एंड यू पिक्ड इट अप, यू रियलाइज्ड इट, तो फिर आगे से आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना. फिर तो आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी और होना भी नहीं चाहिए. जी मैडम, यहीं से मेरा दूसरा सवाल आता है जो which is something very crucial and where we need help, I guess, and at least I'm talking. तो पहले के लिए मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहिबा कि पॉलिटिक्स लर्न करिए, और पॉलिटिक्स तो जब आपके साथ हो तो आपके बास्केट में एनफ इक्विपमेंट होना चाहिए टू डील विद इट. मैडम, वही से सवाल ये स्टेम करता है कि नॉट एवरीबडी इज दैट इमोशनली इंडाउड. आई थिंक इट इज समथिंग लाइक इनबॉर्न होती है. कुछ लोग हम में से बहुत इस मिजाज के साथ होते हैं और कुछ हम में से जो है वो ये एक देखें ना जी, एज के साथ भी एक इमोशनल और एक मेंटल इन्फॉर्मिटी तो इंसान के अंदर आ जाती है. बिकम इनफॉर्म विद एज, जैसे दूसरी चीजों में आप भूलने लगते हैं या आपके दूसरे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, वो इफेक्ट होते हैं. तो उम्र के साथ साथ जो है मेरा ख्याल है बर्दाश्त और इन चीजों में भी थोड़ी सी कमी भी आ जाती है. ज्यादा भी होनी चाहिए, मगर नॉनसेंस लेने के लिए ज्यादती ले तो उसको अपने आप को कैसे ठीक करें, मेरा सवाल ये है. देखिए डॉक्टर साहिबा, अगर आप ये परसीव कर रही है ना, कर रही है या कोई भी आपकी एज पे एट 50s कि मेरे साथ पॉलिटिक्स की जा रही है या लोग मेरे साथ नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यू आर वेरी मच इंटैक्ट
and your brain is functioning properly, and it has nothing Thank to you do for with saying that. number. you. You know, it has nothing to do with the number. वो उसका एज से ताल्लुक नहीं है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी से है। और आप उसको जितना, ब्रेन इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द मोर इट विल ग्रो, और इसका कोई ताल्लुक आपकी उससे नहीं है। यस, आपकी रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, आपके अंदर पावर कम हो जाती है, आप थोड़े से टॉलरेंस आपके अंदर आ जाती है ना वे, कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो आप बुर्दबारी से काम लेते हैं कि कोई बात नहीं, आई एम एट दिस एज एंड स्टेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, मेरी तो लाइफ चल रही है। तो 50s में आपको ये वाली चीजें भी मिलती है जो 30s में नहीं होती है। बिलीव यू जी। मी, जो आपकी अचीवमेंट्स है वो इतनी हो चुकी होती है, जो आपकी फैमिली लाइफ है वो इतनी डेवलप कर चुकी होती है, जो 20s 30s में नहीं होती। आजकल तो मिड 30s तक नहीं होती है। तो ऑलवेज जी। कंपेयर, whenever you have to see yourself, compare it with the ones who are below you. I know it's very bookish, लेकिन this is ultimately the thing जो आपको पीस देगी। और जी हमारा मैडम। जो गोल है वो पीसफुल लाइफ का है और होना चाहिए। जी जी। देखिए बस हमसे मैडम, हाँ जी, वही जी, सवाल जो मैडम अतिया ने भी किया कि वक्ती तौर पर जो है आप यू नॉट डिसअपॉइंटेड विद द अदर पर्सन, यू डिसअपॉइंटेड विद योरसेल्फ व्हेन यू get into an heated argument. Of course, eventually you're disappointed by your own self. But in that heated moment, how to keep yourself calm? That is my question, to be precise. the very basic anger management technique, leave the place. If you're sitting, just stand up. बेहतरीन ये होता है कि leave the place quietly, ये सबसे अच्छा है, with a smile, you know, मैंने पहले कहा था कि स्माइल इज द स्मॉलेस्ट चैरिटी, विद अ स्माइल। और उसमें उसमें कहीं, बिलीव यू मी, डोंट गिव योर ब्रेन दिस मैसेज दैट यू लूज दैट बैटल। स्माइल करके उठ के जाने का कतन ये मतलब नहीं है कि यू लूज द बैटल, रादर आप एक नई उस पर चले गए अपने आप को फ्यूल करने के लिए। तो ये रिमोट दूसरे के हाथ में ना दे कि आप अपने आप को वो फील करवाए जो वो आपको करवाना चाह रहे हैं। या मैडम, आप जैसे किसी माहिर के साथ अच्छे, या और यहाँ पे माहिरीन भी हैं, हमारी डॉक्टर अतिया, मिस अतिया गिलानी, वो भी माहिर हैं, तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ की कंपनी में बैठे हैं और उनसे मुफ्त मशवरे भी लें और पे करके भी लें। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहिबा स्टूडेंट्स के साथ बैठे, बड़े आपको आजकल, बिलीव यू मी, ये टेक माय 2 सेंट्स, आजकल के स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे मशवरे दे जाते हैं। जी मैडम। जी मैडम, मुझे यहाँ कहा गया कि शॉर्ट आंसर्स रखें, अपने EQ पे काम करें, तो बस मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड आंसर एंड पेशेंस। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू वेरी मच जी। जी, नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फाइका साहबा। वालेकुम जी, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मैं जमील जट बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जी सर। ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस फादर रोड लाहौर से। जी माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, एंड यू, आई हैव फाउंड दैट यू आर वेरी। अच्छा मैडम, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ये जो है जी ना सर। टॉलरेंस, बार बार हम सीख रहे हैं कि हमें टॉलरेंस का मुजाहरा करना है, टॉलरेंस का मुजाहरा करना है। अच्छा, और इसमें यह है गुस्से को अपने को दबा के हमने रखना है, तो कोई ऐसी सिचुएशंस भी काइंडली आप हमारे मतलब सामने लाएंगी जिसमें इंसान को गुस्सा करना चाहिए? देखिए जी, मेरा ये जमील ख्याल है साहब, मैंने कि पहले ये लॉ ऑफ नेचर जमील है, साहब लॉ ऑफ नेचर है कि जो ह्यूमंस हैं वो एट ऑल द टाइम्स पॉजिटिव, आप यूं कह लें कि वो गुस्से के बगैर नहीं होते। गुस्सा जो है वो आप कह लें कि एक पंप ऑफ एनर्जी है जो किसी भी ह्यूमन में आता है और इसने आना होता है। जमील साहब, अगर आप मेरी उस स्लाइड पे जाए ऐसी जिसपे मैंने जिसमें गुस्सा करना हमारा बनता हो, हमें गुस्सा करना चाहिए ताकि वो जो बम्प ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हो। जब हम इतना करेंगे कि हमें हर वक्त टॉलरेंस, हर वक्त अगर टॉलरेंस ही रखनी है, तो वो जो बम्प ऑफ एनर्जी होता है दैट स्टेज इनसाइड द ह्यूमन, वेदर इट इज शी और ही। अच्छा, वो जो एक्स्ट्रा बम्प ऑफ एनर्जी है दैट डैमेजेस योर हेल्थ। तो काइंडली कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हमें, मैं चाहता हूँ कि पता चले जिसमें ह्यूमंस को वाकईतन गुस्सा करना चाहिए, एज ए टीचर या एज ए जमील साहब, नॉर्मल ह्यूमन, अगर वो टीचिंग नहीं भी कर जमील रहा साहब, तो भी। दो साइड है मेरे क्वेश्चन की। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। और जी मैम। मैं आपको जवाब दे जी सकती जी हूँ आपकी बात। हाँ। जी जी।
सर जी जी पहली बात तो ये कि पूरी प्रेजेंटेशन में आई हैव नॉट पॉइंटेड आउट कि एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन, बट एंगर इज एन इमोशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। तो मैंने अभी कहीं मैं पे ये नहीं मैडम नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा एक डंप मिनट ऑफ एनर्जी सर, होता है जो किसी आपने भी बोल एनिमल के लिया, अंदर अब आप जनरेट मुझे होता है। बोलिए। जी जमील साहब, आपने अपनी जी जी सवाल बिल्कुल, कर दिया, अब मैं जवाब दे दूं। तो ऐसा नहीं कहा गया कि जी आपने बिल्कुल। जब आपको गुस्सा आए, अगर आप वापस स्लाइड पे जाए तो आप देखें कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप हमें ये पता नहीं चलता कि हमने गुस्सा कितना, किस पे, किस तरह और किस वक्त करना है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? तो ये बात है, ये इसमें कतन भी कहीं पे भी नहीं था कि आपने उसका इजहार नहीं करना अपने एंगर का। यू हैव टू डिस्प्ले योर एंगर वेयर इट इज नीडेड, यू हैव टू डिस्प्ले, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ द डिग्री, द राइट अमाउंट ऑफ एंगर, द राइट टोन एंड द डिग्री। ये बातें इंपॉर्टेंट है। आप जरूर दिखाए, जहाँ पे गुस्सा करना जरूरी है वहां पे आपको दिखाना है, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखना है। देखिए, किसी भी बिहेवियर का गोल क्या होता है? बिहेवियर का गोल, उसकी फंक्शनैलिटी तो करना होता है ना, कि आपने गुस्सा इस वजह से दिखा रहे हैं कि कोई चीज आप करवाना चाहते हैं। एक माँ बच्चे पे क्यों गुस्सा करती है? ताकि वो एक गलत काम से रुक जाए। लेकिन अगर वो गुस्सा इस तरह से करे कि वो गलत काम से ना रुके, तो क्या कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यू हैव टू डिस्प्ले द एंगर, बट इन अ वे दैट द डिजायर्ड, जो डिजायर्ड आपका टास्क है वो हो जाए, जो आप चाहते हैं, जो होना जी चाहिए, बिल्कुल ठीक आपका है। फेवरेबल जो चीज है ना वो हो जाए। ठीक है। दूसरी आपने चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी जो मेरे उस वक्त जहन में आई थी, बट इट जस्ट स्लेप्ट ऑफ। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था। यस, ये कि अच्छा आप मैम, ये डॉक्टर और साहब बात कही थी यही जो आपका कि आंसर है, इट्स वेरी गुड आंसर। जो माँ वाली आपने एग्जांपल दी है, आई ओन इट, बिल्कुल ठीक है। देखिए अच्छा, टीचर यही जो टीचर्स के एग्जांपल साथ भी, आपने दी आपके जिसमें माँ कॉलीग्स के गुस्सा साथ शो करती है, देखिए जो टीचर जी होता है, मैडम लेट मी से फ्यू वर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू योर रिस्पॉन्स। डॉक्टर साहब, मैं ये मेरी गुजारिश ये है कि जैसे माँ गुस्सा करती है अपने बच्चे के ऊपर, बाप भी गुस्सा करता है। क्या ऐसे ही टीचर अपने बच्चे के ऊपर, अपने स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता? क्योंकि मकसद टीचर का भी यही होता है, क्योंकि टीचर वो वाहिद चीज है जो इस बात पे खुश होता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे अल्टीमेटली आगे निकल जाए। तो नहीं टीचर के जमील ज़हन में भी जब बच्चा गलत मतलब अप टू द मार्क बिहेवियर नहीं दे रहा होता है, या आप कह लें परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है, तो टीचर भी उसमें गुस्सा करते हैं। तो क्या उस वक़्त जमील गुस्सा करना फिर ठीक है या नहीं करना चाहिए? जी जमील साहब, आई पिक्ड योर पॉइंट। मैं काफी क्विकली पिक कर लेती हूँ और थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट भी है। हाँ, मैम, एक्चुअली असल में बीच जो में आपने डिस्टॉर्शन आ बात जाती है ना, कही, वो आवाज़ ब्रेक हो जी जी जी, एक्चुअली जो आपने बात कही उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल आप वैसे गुस्सा नहीं कर सकते जैसे आप अपने बच्चों पे करते हैं। और हमारा, बल्कि आजकल के टाइम पे आप अपने बच्चों पे जैसे गुस्सा कर, जो 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 कि मुझे आपका समझ में आ रहा है, हम उस टाइम, उस एज, उस स्टेज, उस एरा से निकल आए हैं, हम आगे चले गए हैं। अब ये कहना कि हड्डियां आपकी और खाल हमारी वाला दौर नहीं रहा। आपने अपने बच्चे को भी कुछ सिखाना है। नहीं, नहीं मैडम, ये तो दौर जी, ही नहीं है, ये दैट इज पहले भी नहीं था। दैट इज ये ऐसे एक जी जी मिथ नहीं, ज़रूर ये है, था लेकिन कोई पहले। भी पेरेंट्स, कोई भी देखिए, ये टीचर ऐसा दौर नहीं था, चाहता। ये दौर था। हाँ, हाँ, Alhamdulillah, हाँ। I have been through an international school. I was born and raised in Jeddah. और even वहाँ पे भी we have different, we had different type of teachers. Bengali teachers होती थी, Filipinos होती थी, and they had different, set of techniques to teach children. लेकिन पाकिस्तानी teachers भी होती थी, and जी, I always heard from my mother कि कोई बात नहीं, ये teacher है। लेकिन उसके बाद दौर बदल गया। तो अभी आप अपने बच्चे के साथ भी वैसे नहीं, अभी जो आप कह रहे हैं ना, क्या हम अपने स्टूडेंट के साथ वैसे कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप किस हुँ, हुँ। कॉन्टेक्स्ट में हैं, आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपके एट हैंड क्या है, आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, हर चीज का एक गोल भी तो होता है। आप उनको स्ट्रक्ट, यानी अगर गुस्सा तड़के पढ़ाने में आपका गोल है कि आप अपना सिलेबस इन टाइम खत्म करवाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपने जो चीज पढ़ाई है वो बच्चों को आती हो, तो उसमें गुस्सा करना कहाँ से आ गया? हैव यू ट्राइड अदर टेक्निक्स और वो आप फेल हो गए हैं तो आप गुस्से की तरफ आ रहे हैं? जी। क्या नहीं, आपने नहीं, नहीं, उनकी, गुस्सा नहीं, नहीं मैडम, ब हम मैडम, मुझे थोड़ा-सा बोलने का मौका देंगी प्लीज़?
नहीं, मेरा ख्याल है आपका टाइम काफी हो गया। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन द लिस्ट। इफ हमें टाइम बचा तो हम आपकी तरफ दोबारा आ जाएंगे। इफ यू प्लीज एक्सक्यूज डॉक्टर। नहीं, एक छोटी सी मेरी गुजारिश मेरी सुन लें। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था कि आप बच्चों पे गुस्सा करें या उनके साथ आप हर वक्त ही रूड और रैश रहें। मेरा सिर्फ इतना मकसद था पूछने का। क्वेश्चन मेरा ये था कि कौन सी सिचुएशंस है जिसमें टीचर को वाकईतन गुस्सा करना चाहिए? कोई ऐसी सिचुएशंस हैं या नहीं है? क्योंकि मुझे भी पता है, हमने अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव तो स्टूडेंट्स की बेहतरी होता है। कोई ऐसी इसमें दो सी राय नहीं है, और वो हमारे उसी तरह के बच्चे हैं जैसे हमारे अपने बच्चे हैं। जी, देखिए सिचुएशंस, if you have tried And all other things, if you have tried all other things, for example, आपने उनकी attendance nowadays in the private sector university, attendance is the thing जिसको आप उनको बड़ा उनको कह सकते हैं कि आपकी attendance जो है हम नहीं लगाएंगे अगर आपका ये काम ना हुआ, या आपके पास और behavioral techniques है, आपने हर तरह की टेक्निक लगा ली और उसके बाद आपने थोड़ा सा sternness शो की या थोड़ा एंगर शो किया, और उस पे आप कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रेकमेंड। इट विल नेवर गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स, देता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अगर प्रिसाइज रहे अपने सवाल में। बिल्कुल, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैडम, एक क्वेश्चन ये था जो आपने कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग जो है वो आप अपने इमोशनल क्वेश्चन को गेज कर सकते हैं और करना चाहिए थ्रू वेरियस टेक्निक्स। तो एक तो बस सवाल मेरा इन शॉर्ट यही है कि क्या कोई ऐसा क्लासिफाइड कोई परफॉर्मा आप हमसे शेयर कर सकें ताकि हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और उसको ही रिपीटेडली। सर डेनियल गोलमैन के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनियर्स है, इसके अलावा 2-4 और लोगों के है, तो ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। जी जी, बेहतर। मैडम, दूसरा क्वेश्चन ये था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी स्टूडेंट के बारे में कोई ओवर द टीचर्स कम्युनिटी या क्लास के जो